بے نقاب قسط نمبر 24۔ حسین رضا وقت بالکل ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ارتقا کو پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی۔ اس دوران میں وجے سمیت ہمارے ٹکٹ آ گئے اور میں بھی بالکل تیار ہو گیا۔ ہم سب اپنے اصل ناموں سے سفر نہیں کر رہے تھے۔ میں اور ارتقا مسٹر اینڈ مسز پی کے نندا تھے اور وجے امید کمار بنا ہوا تھا۔ فلائٹ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ رضا صاحب کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ خدا خیر کرے، اسے تو آدھا گھنٹہ پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ وقت کی بچت کے خیال سے انہوں نے گاڑی تک گیٹ سے باہر نکلوا لی تھی تاکہ جیسے ہی وہ آئے ہم روانہ ہو جائیں۔ میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گی، آپ لوگ روانہ ہو جائیں۔ آخر کار حسین رضا صاحب مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں اور وجے اپنی جگہ سے اٹھے۔ میرے انداز میں تیزی نہیں تھی۔ غالباً لاشعوری طور پر میں ارتقا کے رک جانے پر کچھ مایوس ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے دیکھنے کا میرے دل میں اشتیاق پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا نیا کارنامہ ابھی میرے ذہن میں تازہ تھا۔ ہم گاڑی تک پہنچے تو رضا صاحب نے میری جانب مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہمیں تو اب آپ یہیں سے رخصت کر دیں، اور میں نے بغیر کچھ کہے ان کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ ضرور ملیں گے، میری زبان سے نکلا۔ انشاءاللہ، انہوں نے جواب دیا۔ ایئرپورٹ چھوڑ کر فوراً واپس آنا، انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص سے کہا۔ ابھی ہماری گاڑی نے سٹارٹ ہی لیا تھا کہ وہ چلائے، روکیے روکے، ارتقا آ گئی۔ ہمارے پیچھے ایک گاڑی بہت تیزی سے آ کر رکی اور اس میں سے جو مجسمہ حسن برآمد ہوا، اسے دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا۔ وہ راستے میں ٹائر پنکچر، لیکن رضا صاحب نے درمیان میں سے بات اچک لی، گاڑی میں بیٹھو اور روانہ ہو جاؤ، اور وہ فوراً پیچھے کا دروازہ کھول کر میرے برابر آ بیٹھی۔ السلام علیکم، اس نے مجھ سے کہا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب طرح کی موسیقیت تھی، دل پر اثر کرنے والی۔ وعلیکم السلام، میں نے جواب دیا۔ گاڑی چل پڑی اور ڈرائیور اسے اڑانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ میرا خیال تھا کہ بھائی کے زخمی ہونے کی خبر سے اس کے چہرے پر حزن و ملال ہوگا، یا باپ کی گرفتاری کے لیے مارے جانے والے چھاپوں کی وجہ سے وہ کچھ ہراساں اور متفکر ہوگی، لیکن وہاں ایسی کوئی بات نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے وجے، تم بھی ساتھ چل رہے ہو؟ اس کی نظر اگلے نشست پر بیٹھے وجے پر پڑی تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ ٹکٹ آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ میں نے اسے ٹکٹ اس خیال سے دیے تھے کہ مسٹر اینڈ مسز کے لفظ پر اسے کوئی اعتراض ہے تو ابھی کہہ دے۔ تو آپ مسٹر پی کے نندا ہیں؟ اس نے میری جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ اگر یہ بہروپ بھرنا ہی تھا تو کم از کم اپنے حلیے میں کوئی ایسی تبدیلی کر لیتے۔ آپ تو ویسی ہیں جیسے اپنی تصویروں میں تھے، اور آپ کی تصویریں ہر جگہ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اعتراض کیا، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ہمارے حلقے کی آخری حد سے 30 کلومیٹر دور ہے، اور باقی سب قسمت کے کھیل ہیں۔ ویسے تھوڑے بہت تعلقات تو ہمارے بھی ہیں، وجے نے میری جانب سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور وہ مسکرا کر چپ ہو گئی۔ واقعی سب قسمت کے کھیل ہیں، میں نے آہستہ سے کہا، اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن میرے نزدیک وہ بہت ہی مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اگرچہ کہ اس کا رد عمل کچھ غیر فطری سا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اسے یہ دریافت کرنے کی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ ایسی کیوں ہے۔ لیکن ساتھ ہی مجھے اجیت کی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ وہ واقعی اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے سنگ مرمر کے کسی قد آدم مجسمے میں جان ڈال دی گئی ہو، لیکن جو چیز اس کی لمبی اور سرخ و سفید رنگ والی ارتقا کو سنگ مرمر کے مجسمے سے ممتاز کرتی تھی، وہ اس کی شخصیت میں موجود ایک عجیب سی مقناطیسیت تھی، جو شاید دنیا کے ہر جاندار کو اپنی جانب کھینچتی ہوگی، مگر اس کے ساتھ ہی دل غیر محسوس طریقے پر اس کے احترام کرنے پر بھی مائل ہو جاتا تھا۔ وہ سی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تو وہاں موجود ہر شخص تعارف نہ ہونے کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ارتقا کی شخصیت میں کوئی بھی ایسی بات تھی جو اسے کسی بھی خوبصورت لڑکی سے ممتاز کرتی تھی۔ پھر میرے لیے تو اس کا احترام کرنے کی دوہری وجہ تھی۔ وہ اس منوہر کی بہن تھی جو میری جان بچاتے ہوئے خود موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اجیت نے جس انداز سے اس کا تعارف کروایا تھا وہ اس کے علاوہ تھا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں فائل بند کر دی اور تیاری کی سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ ارتقا پہلے ہی اپنی سیٹ کو پیچھے کر کے خاموشی سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ دیر سے ایئرپورٹ پہنچنا ایک لحاظ سے ہمارے حق میں بہتر ہوا تھا، کیونکہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تیزی سے طیارے تک پہنچتے چلے گئے تھے۔ ہماری حکمت عملی کچھ اس طرح سے تھی کہ وجے کو کار سے اترنے کے بعد ہم سے کوئی تعلق ظاہر نہیں کرنا تھا۔ اس کے کاندھے پر ایک چھوٹا سا سفری بیگ لٹکا ہوا تھا جس میں نہ جانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا۔ پہلی نظر میں وہ ایک لاؤبالی سا نوجوان لگ رہا تھا جو دلی سے اس لیے بھی جا رہا تھا کہ یہاں پر وقت کاٹنے کے اس کے پاس کوئی مصروفیت نہ ہو۔ ہم سے ایک قدم آگے جینز کی پینٹ اور جیکٹ میں ملبوس اس نے بورڈنگ کارڈ حاصل کرنے کے لیے اپنا ٹکٹ دیا تو کاؤنٹر پہ بیٹھی بور ہوتی ہوئی لڑکی نے اسے اس طرح گھورا جیسے کہہ رہی ہو، اب بھی کیوں آئے ہو؟ پھر شاید اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور زبان سے ہی بول پڑی، اگر آپ 5 منٹ مزید لیٹ ہو جاتے
तो प्लेन के दरवाजे बंद हो जाते। विजय का अंदाज ही ऐसा था कि इंतज़ार करने वाले को गुस्सा आ जाए। फिर क्या होता? विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आखिरी फ्लाइट तो नहीं थी, मैं अगली फ्लाइट से चला जाता। विजय के जवाब से लड़की तैश में तो आ गई, लेकिन इसने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। काउंटर पर बैठे हुए इसका वास्ता एक दिन में न जाने इस तरह के कितने ढीठ लोगों से पड़ता होगा। इसने घूर कर एक नज़र विजय पर डाली और इसे बॉडी कार्ड दे दिया। एक बात कहूँ आपसे मिस, विजय ने बॉडी कार्ड हाथ में लेकर कहा। जी? लड़की ने जी अपनी पेशेवराना मजबूरी के तहत कहा था, वरना इसके जी कहने का अंदाज ऐसा ही था जैसे कह रही हूँ बको। लेकिन विजय ने इसके अंदाज पर गौर नहीं किया, बल्कि जी के फौरन बाद कहने लगा, अक्सर लड़कियाँ मेरा इंतज़ार करती हैं और मैं इन्हें इसलिए भी इंतज़ार करवाता हूँ कि सुना है इंतज़ार में बड़ी लज्जत होती है और मैं अपने मुल्क की लड़कियों को इससे महरूम नहीं रखना चाहता। विजय कहकर बगैर रुके यह जवाब का इंतज़ार डिपार्चर लॉन्च की जाने बढ़ गया। काउंटर पर बैठी हुई लड़की कुछ देर तो इसकी पुश्त को घूरती रही, फिर बड़बड़ाने लगी, इडियट, बदतमीज़, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जानवर। इसकी बड़बड़ाहट इतनी वाज़ेह थी कि हम काउंटर की दूसरी जानिब खड़े हुए सब कुछ सुनते रहे और इस तरह बड़बड़ाते इसने हमारे भी बोर्डिंग कार्ड बना दिए, लेकिन इर्तिका के हाथ में देने से पहले अपने आप को कुछ कहने से रोक ना सकी। आप लोग तो कोशिश करके वक्त पर क्यों नहीं आ जाते? विजय का गुस्सा हम पर उतारने के मूड में थी, लेकिन इर्तिका ने इसका मौका नहीं दिया। आइंदा कोशिश करेंगे। और हम भी दोनों लाउंज की जानिब चल दिए। ये विजय भी तो बहुत बदतमीज़ है। हम दूर आ गए तो इसने सरगोशी के अंदाज में कहा। छोटा सा एक सफरी टिकट जिसके दाएं हाथ में था, जिसमें में यकीनन इसके कपड़े वगैरह होंगे, जबकि मेरे हाथ में ब्रीफ केस था जिसमें वही फाइल मौजूद थी जो हुसैन रजा साहिब ने मुझे कार में दी थी। हम दोनों पहली नज़र डालने वाला यही समझ सकता था कि कोई बिजनेसमैन अपनी बेशकीमत सूट में मलबूस अपनी बीवी के साथ यकीनन किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और ये बिजनेस ट्रिप से वापस लौट रहा है। इर्तिका के जवाब में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ था। मैं इसे कह सकता था कि इतने थोड़े से वक्फे में इस शख्स के 3 मुतजाद चेहरे सामने आए हैं। अब मालूम नहीं इनमें से असली चेहरा कौन सा है, किसी माहिर जंगजू की तरह फायरिंग करने वाले फुर्दले मुहाफिज का, आने वाले खतरों की पेशबंदी करने वाले होशियार मनसूबा साज का, या एक खलंडरे और बदतमीजी की हद तक शरीर नौजवान का। लेकिन मैं खामोश रहा। इर्तिका से सब कुछ कहने की हिम्मत मैं इसलिए भी नहीं कर पा रहा था कि मैं ये सब कुछ कहने से पहले इसके भाई के ज़ख्मी होने पर माजरत करना चाहता था। ये कहना चाहता था कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इसका इकलौता भाई मौत व ज़ीज़ की कश्मकश में मुब्तला है। लेकिन मैं इससे ये सब कुछ इसलिए नहीं कह पाया कि न जाने इसके इल्म में ये तमाम बातें हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कदीर के ज़ख्मी होने के बारे में सुनकर वो अपने हवास खो बैठे और सारा मंसूबा धरा रह जाए। फ्लाइट बराह रास्त दिल्ली नहीं जा रही थी, बल्कि रास्ते में इसे एक जगह मज़ीद रुकना था। तैयारी के टेक ऑफ करने के बाद हमें ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई थी। फिर हम दोनों ही थोड़ी देर अखबार देखते रहे। फिर वो सीट पीछे करके आराम करने वाले अंदाज में बैठ गई। मैंने भी इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और वो फाइल पढ़ने लगा जिसमें उस रोज़ होने वाले तमाम हंगामों की तफसीलात दर्ज थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने वाले अंदाज में लिखी गई इन हंगामों की तफसीलात इतनी होलनाक थी कि मैं हर सतर पर काँप जाता था। जिस बड़े हंगामे में मेरे कंधे पर गोली लगी थी, इसकी तफसीलात के मुताबिक अब तक 11 अफराद के हलाक और 8 के शदीद ज़ख्मी होने की इत्तला थी, जबकि डॉक्टर साहब के घर के सामने इर्तिका के हाथों मारे जाने वाले 2 अफराद समेत 5 छोटे बड़े बलुओं में मज़ीद 4 अफराद मारे जा चुके थे। छोटी छोटी कई जगहों पर फायरिंग और आतिश ज़दगी के वाक़यात इनके अलावा थे। क्या ज़ख्म में तकलीफ़ हो रही है? इर्तिका ने मुझे आंख बंद करके टेक लगाए हुए परेशानी के आलम में देखा और कहा, और मैं इसे खाली खाली नज़रों से देखने लगा। तो क्या इसे कदीर और मेरे ज़ख्मी होने की इत्तला है? मैंने अपने आप से सवाल किया। गाड़ी में बैठने से लेकर तैयारी के सफ़र तक मैंने दानिस्ता किसी भी लम्हे अपनी तकलीफ़ ज़ाहिर नहीं होने दी थी। मेरे शाने की बैंड तो पहले ही कोट और कमीज़ के नीचे छुप चुकी थी। किन सोचों में गुम हो गए आप? इर्तिका ने मुझे खामोश देखकर कहा, क्या दर्द ज़्यादा बढ़ गया है? इसने ऊपर तले 2 सवालात किए। नहीं, मैं फाइल पढ़ते हुए एक परेशान कुन मरहला सामने आ गया था, इस पर सोच रहा था, मैंने जवाब दिया। असल सवाल करने की हिम्मत अब भी मुझ में नहीं थी। अगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। इसने अपनी खिदमत पेश करते हुए कहा। ये पम्फलेट, मैंने फाइल के आखिर में लगे इन दोनों पम्फलेटों को इसके सामने करते हुए आहिस्तगी से कहा। क्या हुआ इन्हें? इसने पम्फलेट पढ़ने के बजाय उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। एक में तो राजा साहिब की गिरफ्तारी की खबर है जो कांग्रेस की जानिब से दी गई थी, और दूसरा पम्फलेट जो हमने छापा है इसमें। मेरी बात अभी जारी ही थी कि वो दरमियान में बोल पड़ी, ये दोनों पम्फलेट मैंने ही तैयार किए थे। इसने मुझे हैरत के दरिया में एक मज़ीद गोता देते हुए कहा। तो अजीत का अंदाज़ा ठीक ही था, मैंने सोचा, लेकिन इर्तिका मेरी जानिब मुतवज्जो थी, इसलिए मैंने फ़ौरन ख्याल की दुनिया से वापस आ जाना मुनासिब समझा।
दूसरे पम्फलेट में जो आवाम को मुबारकबाद दी गई है कि इनके सरों पर लटकती हुई तलवार हमेशा हमेशा के लिए हट गई है, और ये मैंने पम्फलेट के एक दूसरे हिस्से की जानिब इशारा करते हुए कहा, ये जो लिखा है कि आज की रात जब भेड़िया हवालात की सैर करेगा तो आज़ादी का सूरज तुलू होगा। मैं ठीक तौर पर अपनी ज़हनी उलझन को पेश नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे असल मसले तक पहुंच गई। हमने ये पम्फलेट इस तरह से डिज़ाइन किए थे कि पहले कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस के अपने लेटर हेड पर एहतजाज किया जाए कि मजलूम गिरफ्तार हो गया है और आवाम इसके जुल्म के खिलाफ इसका साथ दें। लेकिन इससे हम ये फ़ायदा लेना चाह रहे थे कि इन इलाकों में इस पीढ़ी ने दहशत की जो फ़ज़ा बना रखी थी वो ख़त्म हो जाए और लोग ये सोचे बगैर कि कल कोई इनसे जवाब तलबी कर सकता है, आज़ादी से अपनी राय का इजहार कर सके। इर्तिका पूरे एतमाद से बोल रही थी और मैं हैरत से इस नाजुक सी लड़की को देख रहा था जो ये दावा कर रही थी कि वो इतनी लंबी प्लानिंग के बारे में गौर कर सकती है। फिर इस पहले पम्फलेट को कंफर्म करने के लिए ये दूसरा पम्फलेट डिज़ाइन किया गया ताकि वो थोड़ा बहुत शुबा जो किसी के ज़हन में है उस वक्त तक नहीं उठे जब तक पिछली नशिस्तों से विजय हमारे करीब नहीं आ गया। मेरे ख्याल में मेज़बानों से अगर मुलाकात हुई तो लाउंज ही में होगी। इर्तिका ने सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा, ये आपके सन ग्लासेस सीट पर रह गए थे। विजय ने एक कीमती सा धूप का चश्मा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा और मैंने थैंक यू कहकर इसके हाथों से ले लिया। एक नंबर का जेब कुतरा है। इर्तिका ने मेरी परेशानी को भांपते हुए कान के करीब आकर कहा, आप ऐनक लगा लें, तेज़ रोशनी से आपकी आंखों में तकलीफ हो जाती है। इर्तिका ने बुलंद आवाज़ में इस तरह कहा जैसे कोई बीवी अपने शोहर को हदायत दे रही हो। तैयारे के बाहर रात हो चुकी थी और अंधेरा छा चुका था, लेकिन इर्तिका ने मुझे जवाब फराहम किया था। शायद इसके ज़हन में भी वही सवाल उभरा था जिससे हल करने में मैं मसरूफ़ था। इन दोनों का ख्याल था कि शायद चश्मा लगाने से मेरी शख्सियत में कोई तब्दीली आ जाएगी और हमारे इस्तकबाल की आए हुए लोगों को पहली नज़र में मुझे पहचानने में मुश्किल पेश आएगी। मैंने सोचा और चश्मा लगा लिया। तैयारे से पहला कदम इर्तिका ने बाहर निकाला, लेकिन सीढ़ी पर यूं रुके जैसे इसने कोई डरावना ख्वाब देख लिया हो। इसे रुकता देखने के बावजूद मैं भी बाहर निकल आया। मेरे जहन को भी वही झटका बर्दाश्त करना पड़ा जो इर्तिका को लग चुका था। तैयारी की सीढ़ियों के बिल्कुल करीब दो पुलिस अफसरान के हमरा सलीम शेरवानी मौजूद था और अपने करीब से गुजरने वाले हर मर्द औरत को बड़े गौर से देख रहा था। एक कांग्रेसी हर हालत में कांग्रेसी ही रहता है। मेरे ज़हन में हिंदुस्तानी सियासी हलकों में गर्दिश करने वाला मशहूर मकूला गूंजा, आप निकलने की कोशिश करें, मैं सलीम भाई को समझाने की कोशिश करती हूँ। इर्तिका ने 2 सीढ़ियाँ उतरते हुए आहिस्ते से कहा। वो सलीम शेरवानी और अपने ख़ानदान के दरमियान दरीना मुरासम का फ़ायदा उठाना चाह रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सख्ती के साथ इसे मना करते हुए कहा। अगर वो हमें नहीं पहचानना चाहेगा तो तुम्हारे कुछ कहे बगैर भी नहीं पहचानेगा। मैंने भी इसी अंदाज में सरगोशी करते हुए कहा। वैसे भी बात इसके इल्म में होगी कि तुम मेरे साथ सफ़र कर रही हो। इसने अपनी बात मुकम्मल की और इर्तिका बगैर कुछ कहे मेरे साथ उतरने लगी। न जाने क्यों सलीम शेरवानी के माजी के रवैये की बिना पर मुझे उम्मीद थी कि वो अपने इस अक्स को धुंधला नहीं होने देगा जो मेरे जहन में इसके लिए मौजूद था। लेकिन इस बार वो मेरे तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा। सिकंदर साहिब, मेरे इर्तिका पर पहली नज़र डालते ही इसने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, जी फरमाइए मिस्टर सलीम शेरवानी। मैंने अपने रेजे मौजूद तलखी को छुपाने की भी कोशिश नहीं की थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैंने ढीले हाथों से मुसाफा तो कर लिया, लेकिन इसके सलाम का जवाब नहीं दिया। तो आखिर इसने भी अपने कांग्रेसी होने का सबूत दे ही दिया। मैंने फैसला कुन अंदाज में सोचा। सलीम शेरवानी के इस अमल ने मुझे रंजीदा कर दिया था। क्या इसे लखनऊ से दिल्ली खुसूसन इसी काम के लिए बुलाया गया था? मेरे जहन में एक और सवाल उभरा, लेकिन मैं ज़ुबान से कुछ कहे बगैर से घूरता रहा। हम माजरत खाएँ, लेकिन आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मुसाफा करने से मेरे हाथ में टीसें उठने लगी थी, लेकिन मैं अपनी कुव्वत के साथ इन्हें बर्दाश्त कर रहा था। वो अपना फिक्रा मुकम्मल करके खामोश हुआ ताकि मैं कुछ कह सकूं, लेकिन मैंने बगैर कुछ कहे इसे घूरते रहने पर इक्तफा किया। अगर आप कुछ वक्त दे सके तो वज़ीर-ए-आज़म साहिबा आपसे बात करना चाहती हैं, इसने अपनी आमद का मकसद बयान करते हुए कहा। हमारे पीछे उतरने वाले तमाम अफराद भी अपनी अपनी जगहों पर रुककर हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने में मसरूफ़ थे। मैं किसी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था। मदन लाल साफियों को लेकर आया होगा और हमारी तरह अटल बिहारी वाजपेयी भी यही समझ रहे होंगे कि हुकूमत ने जो भी कार्रवाई करनी होगी लाउंज में करेगी, लेकिन लोमड़ी की तरह चालाक इंदिरा ने हमारे तवक्कुआत के बरखिलाफ हमें तैयारी की सीढ़ियों पर ही रोक लिया था। और अगर हम इनसे बात करने से इनकार कर दें तो इर्तिका ने मुझे खामोश देकर गुफ्तगू में हिस्सा डालते हुए कहा। सलीम शेरवानी दानिस्ता तौर पर इसे नज़रअंदाज कर रहा था, लेकिन इर्तिका के इस तरह मुखातिब करने के बाद इसके पास कोई चारा नहीं रह गया था। हमारा ख्याल है कि ये बात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इनसे बात कर लें। इसने अपनी बात को दोहराते हुए कहा। अगर ये सब इतना ज़रूरी ना होता तो हम कभी भी इस तरह दौड़े दौड़े ना चले आते। इसने सोचते हुए कि गैर मुतल्लिका अफराद भी हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपनी गुफ्तगू को गोलमोल करते हुए कहा। हमारे इनकार की सूरत में शायद हमें गिरफ्तार करके इंदिरा के दरबार में पेश किया जाएगा। मैंने पुलिस अफसरान की मौजूदगी की जानिब इशारा करते हुए कहा।
वज़ीर आज़म साहिबा इस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं, लेकिन वो आपसे फ़ोन पर गुफ्तगू करेंगी। इसने मेरे खदशे पर अब भी अपनी कोई राय नहीं दी थी। तो गोया मेरा ये खदशा सही है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मैंने सोचा। और ये मासूम सूरत सलीम शेरवानी इंदिरा और हुकूमत का आलाकार बन गया है। मैं बहुत तेज़ी से किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फिर सोचते सोचते मेरी नज़र लाउंज की जानिब उठी, जहां मेरे हमदर्द मुझे गिरफ्तारी से बचाने के लिए मौजूद थे। लेकिन आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं तो पहले वारंट दिखाइए कि किस इल्ज़ाम के तहत आप गिरफ्तार कर रहे हैं, मैंने चीखते हुए कहा। मेरा मकसद इसके अलावा कुछ नहीं था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और ये खबर लाउंज में मौजूद मेरे हमदर्दों तक भी पहुँच जाए, ताकि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। सिकंदर साहिब मेरी बात सुनिए, सलीम शेरवानी ने आहिस्तगी से कहा। इसने मज़ीद कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि अहम शख्सियात को एयरपोर्ट से तैयारी तक पहुँचाने वाली VIP कार बहुत तेज़ी से हमारे पास आकर रुकी। ड्राइवर ने इतनी तेज़ी से ब्रेक लगाए थे कि पूरी फ़ज़ा इस आवाज़ से गूंज उठी। कार से ड्राइवर की बराबर वाली नशिस्त से पहले अटल बिहारी वाजपेयी उतरकर तेज़ी से हमारी जानिब लपके। फिर पिछली नशिस्त से वो शख्स उतरी जिसके बारे में मेरे जहन में कभी नहीं आ सकता था कि वो एयरपोर्ट पर मौजूद हो सकती थी। जवाहरलाल नेहरू की बहन और इंदिरा गांधी की फूफी विजय लक्ष्मी पंडित की मौजूदगी में सलीम शेरवानी मुझ पर किसी भी किस्म का नाजायज़ दबाव नहीं डाल सकता था। वो बड़े इत्मीनान से कदम उठाते हुए आई और मेरा हाथ पकड़कर दोबारा गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोली, चलो वाजपेयी साहिब भी इस वक्त तक खामोश खड़े रहे थे। मैं सलीम शेरवानी के बराबर से गुजरता चला गया और वो खामोश रहा। एक्सक्यूज़ मी, एक पुलिस वाला एन इस वक्त बोला था जब उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया था। एक्सक्यूज़ मी ने वहाँ मौजूद 3 अफराद पर 3 मुख्तलिफ असरात मुरतब किए। अटल बिहारी वाजपेयी जो ड्राइवर के बराबर नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर बैठने के झुके थे, अपनी जगह पर सीधे होकर इस एक्सक्यूज़ मी कहने वाले पुलिस अफसर की जानिब मुतवज्जो हो गए, जबकि मेरी कैफियत इस कैदी से मिलती जुलती थी जिसकी रिहाई के अहकामात सादिर हो गए हों और इसकी हथकड़ियाँ खुली ही जा रही हों कि अचानक इसे बताया जाए कि मुलजिम और एक मुकदमे मतलूब है और इसे दोबारा जेल भेज दिया जाए। लेकिन हम दोनों से मुख्तलिफ रवैया मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित का था। इसे एक छोटे से फिक्र जो यकीनन इस शख्स ने महज हमें मुखातिब करने के लिए कहा था, वही काम किया जो पेट्रोल के लिए जलती हुई माचिस की एक हकीकत सी तीली करती है। यू बास्टर्ड, उन्होंने पलटकर कहा, क्या तुम अपने हवासों में नहीं हो? इनकी आवाज़ इंतहाई बुलंद थी। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमें रोकने की कोशिश करो? इनका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे इस पुलिस ऑफिसर ने इन्हें मुखातिब करके कोई नाकाबिले माफ़ी गुस्ताखी की हो। लेकिन वो ऑफिसर भी अपनी नौयत का एक ही था। वो इनकी शख्सियत से मरूब हुआ और ना ही इनके गुस्से से लरजती आवाज़ और गाली से इस पर कोई असर दिखाया। वो नहायत इत्मीनान से चलता हुआ हमारे ऐन सामने आन खड़ा हुआ। मैडम, आपको सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है। इसने जब्त का दामन अब भी हाथ से नहीं छोड़ा था। हम ना तो सिकंदर साहब को गिरफ्तार करने आए हैं और ना ही हमारी यह मौजूदगी किसी और बुरी नीयत से है। वो पुरस्कुन अंदाज में बोल रहा था, लेकिन मेरे दिल में उभरने वाले वसवसों ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने सोचा, पुलिस वालों का ये रवैया सिर्फ उस वक्त तक है जब तक ये बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। पुलिस से मुतल्लिक बेशुमार कहानियाँ मेरे ज़हन में बेहक वक्त गर्दिश करने लगी। अगर ये सब नहीं है तो क्या तुम यहाँ सलामी देने आए हो? मिसिज विजय लक्ष्मी पंडित की ज़ुबान से शोले निकलने लगे। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि आप पहले हमारी बात सुन लें और इसके बाद तबसरे करें? निडर पुलिस ऑफिसर ने इस बार भी मुतासिर हुए बगैर कहा, ठीक है, जो कुछ कहना है वो मेरे घर पर आकर कहो, मैं इसे साथ ले जा रही हूँ। एक अदना पुलिस वाले से जवाहरलाल की बहन कैसे हार मान लेती? यहाँ से बाहर जाने की सूरत में सूरत हाल अक्सर तब्दील हो जाएगी। इससे बेहतर होगा कि प्रेस को बयान जारी करने से पहले ही गुफ्तगू कर ली जाए। पुलिस ऑफिसर भी अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। इस दौरान में सलीम शेरवानी और दूसरा पुलिस ऑफिसर भी हमारे करीब आ चुके थे, जबकि इर्तिका और विजय अब तक वहीं खड़े थे जहाँ से बकिया अफराद हमारे दरमियान होने वाली तलखी देख रहे थे। नहीं, ये आपके साथ कहीं नहीं जाएगा। मिसिज पंडित के लहजे में पूरी कतियत मौजूद थी। अगर हमें कुछ कहने की इजाज़त हो तो सलीम शेरवानी ने दखलंदाजी की कोशिश की ही थी कि मिसिज पंडित इस पर पलट पड़ी। अपने बुजुर्गों की अरवाह को तुमने जिस अंदाज से शर्मिंदा किया है, इस पर मैं शर्मिंदा हो रही हूँ। हम तो ये कहना चाह रहे थे कि यही स्टेशन मैनेजर के किसी कमरे या किसी मुनासिब जगह पर बैठकर गुफ्तगू कर ली जाए। सलीम शेरवानी की मुखातिब मिसिज पंडित थी, लेकिन रोए सुखन हम सब की जानिब था। वो फिर जैसे इसने मिसिज पंडित को कुछ सोचते हुए देखा, फौरन दूसरा वार कर दिया। हम इन बुजुर्गों या अरवा की कसम खाकर कहते हैं, जिनका हवाला भी आपने दिया है, हम सूरत हाल की संगीनी को कम करने आए हैं। सलीम शेरवानी के लहजे के एतमाद ने हम तीनों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। मिसिज विजय लक्ष्मी ने एक लम्हे सोचने के बाद जवाब दिया, राइट। सलीम शेरवानी,
और इस पुलिस ऑफिसर ने बेअक जवाब दिया। मुझे इस बात से कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बात करना चाहते हैं, वज़ीर आज़म का कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं या फिर कोई और मामला था। इसलिए मैं खामोशी रहा और चुपचाप कार की पिछली नशिस्त पर बैठकर ये इंतज़ार करता रहा कि देखें अब सलीम शेरवानी की पिटारे से कौन सी नई बात ज़हूर में आती है। अपनी जगह बैठे हुए मैंने ये ज़रूर देख लिया था कि सलीम शेरवानी ने पहले इर्तिका को, फिर इर्तिका के कुछ कहने पर विजय को भी अपनी कार में सवार करवा लिया था और फिर आगे आगे इनकी कार और इसके पीछे हम रवाना हुए।